Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Uh, I am back with another episode. I'm your host शाहरुख अली. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं इंटरव्यू के लिए, ही इज़ फ्रॉम कराची, लेकिन राइट नाउ ही इज़ लिविंग इन इस्तांबुल, तुर्की. और इनका जो इंट्रोडक्शन है वो हम इन्हीं से लेंगे. फिलहाल इनको हम जो इनवाइट कर लेते हैं. आई गिव यू सियाल खान. Yes. अस्सलाम वालेकुम सियाल साहब. Walaikum assalam, Shahrukh Ali. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है. हाउस तुर्की, मौसम कैसा है? Sun, it's cold, man. It is. And what time is Yeah, it in yeah. Turkey? It's now 2:12. Yeah, 2:12, like around 2 hours ahead yeah, 2 hours. You from guys are Pakistan. ahead. Uh, Yeah. uh, we are okay. तो let's start the interview. स्टार्ट करते हैं. सियाल कौन है? यानी मुझे पहला सवाल मेरा यही होता है कि सियाल थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें. सियाल खान कौन है? जरा हमारे ऑडियंस को बताइए. So, Sial Khan, it's me. Assalamu alaikum, everyone. Hope you guys are doing very well. I'm basically from Pakistan, Karachi, but I live in Istanbul since almost like 3 years. Uh, I've done my BA economics from Karachi University, and I working in the hostel here in Istanbul. I love to travel around the world and make new friends. That's who I am. That's good. That's really good. Now my next question is तुर्की. हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर बंदे का आजकल ये ख्वाब है कि तुर्की पहुंच जाए किसी तरीके से, लेकिन वे टू गो मसले बहुत हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता. काफ़ी एजेंट्स हैं, वहाँ जाते हैं, अपने पैसे खो देते हैं. कुछ लोग बोलते हैं हम जॉब दिला रहे हैं, वीज़ा दिला रहे हैं, एंड दे पुट देयर मनी ऑन देम एंड ऑल लॉस्ट. तो आप क्या Exactly, एडवाइस exactly. करेंगे? क्या तरीका है तुर्की जाने का? So इजिएस्ट वे. तुर्की तुर्की जाना कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है यहाँ आना. वो मैंने जब रियान अल्लाह वाला ने मुझसे इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी मुझसे यही पूछा था कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो, लाइक हाउ दे विल कम टू टर्की. So my suggestion is it's not that hard. You have to just apply, like any of you can go to the consultant and make your own profile where they will ask your documentation, which is like when I was applying for Turkey, they ask like NTN, which is your national tax number, and Chamber of Commerce. Uh, if you don't have these all documents, but if you are doing somewhere job, so of course you will have your salary slip. You can show them the salary slip, your bank account, your passport, your insurance, and booking reservation. That's all they need. Uh, they will make an appointment. The consultant they charge I think 5 to 7 thousand rupees, Pakistani rupees, and 5 to 1,000, 5 to 7,000 Pakistani rupees, not yeah, तुर्की just to की make your profile. Hmm. Yeah. Then once you get your appointment, you have to go to the jury or any like the where you have to apply like embassy, consulate, whatever it is. So I applied from Jerry's, my first visa. I came here like 4 times. Before moving here, I came here twice. So once you go there, you give all your documents, and the the fee is like around 17,000 something. I'm not sure about it. So you have to just apply there and wait for 14 days. They give you some form to fill out, like where you have been before, what you are doing, like why you want to go to the Istanbul, Turkey.
That's all they need in information. They don't ask like a live interview. They give you the paper where you have to fill out. That's it. And then they submit your documents. After 14 working days, they call you that your passport is arrived. You have to come and collect your passport with your identity card. That's all they need. But people like they got new, and it's for them like it's more easy to come here to by illegal way. They pay Definitely. more money. They pay more than like one like 1 लाख 2 लाख रुपए ये लोग दे देते हैं यहाँ आने के लिए। तो माय सजेशन, मुझे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये काम बिल्कुल ना करें। आप लोगों का अपनी लाइफ का खतरा है तुम्हारा। आप जब बॉर्डर क्रॉस करते हो, इट्स नॉट दैट इजी एज पीपल थिंक, लाइक दे आर जस्ट मेकिंग इमेजिनेशन लाइक ओ आई विल जस्ट गो देयर एंड एवरीवन रीच ऑलरेडी देयर। बट मगर जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप उनसे पूछेंगे ना तो वो अपनी जुबानी बहुत अपने उनके दिल से जो निकलती है और जो दिल से उनकी बातें निकलती है ना, वो उनको पता है। मैं ये जज नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ ये बातें सुनी है अपने दोस्तों से जो यहाँ आए। वो दोस्त मेरे यहाँ बने, मेरे कोई ऐसा एक दोस्त नहीं आया कि वो मुझसे पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट में है कि मैं आ रहा हूँ, ये मेरा रास्ता है और मेरी फिर वहाँ हेल्प कर लोगे। तो कहने का मकसद ये है, आप सीधा वीज़ा लें। किसी एजेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट आपसे रिक्वेस्ट करता है 2 से 3 लाख रुपीस का कि आपको मैं वीज़ा दिलवा दूंगा, और वो उनका खर्चा क्या आता है 25 to 30,000 रुपीस। दैट्स इट। बाकी उनका प्रॉफिट होता है। अगर वो वीज़ा नहीं भी आता तो वो पैसे आपसे ही चार्ज करता है, ये 70,000। वो आपको पहले में ही ये बता देगा कि आपका जो वीज़े का फी है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो उनका कोई रिस्क नहीं है पैसे का, वो सिर्फ फायदे में ही चल रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ खुद करें। दूसरा, आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाके आप सर्च करें क्या रिक्वायरमेंट है। आप उनके वेबसाइट पे जाए, टर्की के, उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करें, वीज़ा ले लीजिए और फिर यहाँ आकर जॉब देखें। अच्छा, जॉब के हवाले से जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था रियान अल्लाह वाला को, ही इज़ अ नाइस गाय। मैं बहुत खुश हुआ उनसे मिलके। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मतलब लोगों को क्या बताना चाहते हो जॉब के हवाले से, यही क्वेश्चन उनका भी था। तो जॉब में यहाँ प्रोवाइड नहीं करता। मैं भी जब यहाँ आया था तो मैं भी सिंगल, मुझे एक मैं अल्लाह के आसरे पे आया था कि अल्लाह ही करेगा जो करेगा। मैं पाकिस्तान में खुद एक I was doing business and studying. मेरा खुद एक कपड़ों की शॉप थी मेरी, जामा क्लास में। भाई के साथ होते थे हम। तो मैं वो खुद छोड़कर यहाँ आया था। मैं पहले घूमने आया था, यहाँ सब देखा मैंने। I was looking forward for business, for job, but then I decided like if anyone want to do business, they cannot start directly business. You have to spend your life for like a year, for 2 years, so you can know what's going on in the country. Definitely. तो मैं जब यहाँ आया था मैंने जॉब किया था। मेरा यहाँ कोई नहीं था। मुझे किसी दोस्त के हवाले से यहाँ एक जगह मिली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे दोस्तों के पास चले जाएं। मैं वहाँ जिस घर पे गया था, जिसके दोस्तों के घर पे, वो भी पाकिस्तानी थे सारे। एक घर में वो 15 to 20 पीपल ये लोग रहते थे सब। मैंने वहाँ सिर्फ 2 महीने में रहा हूँ, और मैं वहाँ एक फैक्ट्री में जॉब करता था, क्योंकि मुझे मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। मैं किसी से बोलता था कि मेरी हेल्प करे, मुझे जॉब लेनी है, ये वो, ये मेरी डिग्री है और मैं वहाँ ये काम करता था, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। मगर सब वही, क्योंकि वो खुद अपने फैक्ट्री के काम में लगे हुए थे। उनको वो कह रहे थे जब मैं खुद फैक्ट्री में काम करता हूँ तो मैं आपको कैसे जॉब दिलवाऊँ, कहाँ से दिलवाऊँ। तो फिर जब मैं यहाँ
घूमने आया था पहले तो मैं जिस हॉस्टल में रहता था, मैंने उस हॉस्टल के ओनर को फोन किया कि अगर आपको किसी की लाइक रिसेप्शनिस्ट और व्हाटएवर यू गाइस नीड, लेट मी नो, आई एम हियर इन इस्तांबुल। तो 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि हमें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, अगर आप फ्री है तो आप आ जाएँ। मैं बड़ा खुश हुआ था उस दिन, लाइक वहाँ से मुझे ये एक उम्मीद मेरी बढ़ गई थी, वरना पता नहीं क्या है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, आप रिसेप्शन पे आए। जब मैं वहाँ गया, मैंने अपनी नाइट शिफ्ट स्टार्ट किया था। लाइक मेरी वर्किंग आवर्स 12 आवर्स थे, लाइक 9 to 9, 9 at night to in the morning। मैं 12 घंटे जॉब करता था वहाँ। तो मुझे मेरा मैनेजर जो तुर्कमेनिस्तान का था, बहुत नाइस बंदा था, मुराद नाम था उसका। उन्होंने मुझे सब सिखाया कि ये रिसेप्शनिस्ट का काम ऐसा होता है, ये वो। जो मैं जिस हॉस्टल में काम करता था, वो हॉस्टल हमारे इस्तांबुल में सेकंड नंबर पे था। उनके पास उस टाइम क्योंकि विंटर था और विंटर में यहाँ टूरिज्म इतना नहीं होता, उन्होंने कहा ये अच्छा टाइम है, आप इस लड़के को रख लेते हैं। और मैंने ओनर से भी एक रिक्वेस्ट की थी, वो मुझे अच्छे खासे जानते थे। मैंने उनको ये बोला था कि मैं यहाँ एक बिजनेस के हवाले से भी आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा टाइम गुजारना है, मुझे सब सीखना है, देखना है क्या हो रहा है, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे बिजनेस करना है या नहीं। तो उन्होंने मुझे सारा काम सिखाया। फिर काम सीखते-सीखते कुछ मेरे खुद इंटरेस्ट था मुझे सब काम सीखने का, क्योंकि आई वाज़ लाइक मैं लोगों से वहाँ बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आते थे वहाँ, हम उनसे मिलते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वो अपनी स्टोरीज़ बताते थे हमें। तो बड़ा अच्छा लगता था, हर एक कल्चर से हमें पता चलता था, हर एक लोगों का हम मैं मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी कंट्रीज़ के लोगों से मिला हूँ जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने वहाँ काम शुरू किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम करते-करते मैंने 2.5 साल मैंने उनके साथ काम किया। मैंने कोई डे ऑफ नहीं किया 2.5 साल में। होटल की वर्किंग में कोई डे ऑफ नहीं होता, आपको पूरा वीक काम करना होता है। तो मैंने 2.5 साल पूरा काम किया, मैंने कोई एक सिंगल डे ऑफ नहीं था हमारा। हम बीमार भी होते थे तो हम सिर्फ 4-5 घंटे के लिए सिर्फ सो जाते थे, लेट जाते थे अपने बिस्तर में, बाहर जाना ये हम बस एक तरह का घर था हमारा। हम हॉस्टल में काम करते थे, हमारा रहना भी वही था, खाना भी वही था, सब कुछ वहाँ था। मैं खुश भी था वहाँ। अगर मैं खुश नहीं होता, मैं एक महीना भी काम नहीं कर पाता। डेफिनेटली। मैं चला जाता वहाँ से। लेकिन वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर ला इस दिस ईयर लाइक इन मार्च, 1 में पाकिस्तान गया। मैंने ये डिसाइड किया मैं पेरेंट्स अपनी फैमिली से मिल लूँगा। तो जब मैं पाकिस्तान आया और लाइक आई केम फॉर अ मंथ टू मीट माय फैमिली। So when I reached Pakistan, Karachi, and I saw my family, I was so happy there. I spent just 12 days, and after that, like I heard the news, like the whole world is shut down, and Corona came, and you cannot go anywhere. तो ये कभी मेरे दिमाग एक मेरे सोच भी नहीं था कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। तो खैर बहरहाल अल्लाह हम सबको इस बीमारी से बचाए, हमें आमीन। सेहत दे। हम सबको जो बीमार है दुनिया में सबको अल्लाह सेहत दे। तो फिर 8 महीने मैंने पाकिस्तान में गुजारे। अभी इस मंथ नवंबर में मैं वापस यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा कि मैं कहीं और दूसरे हॉस्टल में अब काम कर लेता हूँ। मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया था, क्योंकि एक टाइम गुजारा था वहाँ, मुझे पता था अब मैं दोबारा एक फिर से उनके साथ काम करूँगा। नो डे ऑफ, यू हैव टू वर्क लाइक फॉर 12 आवर्स। मैंने यहाँ दूसरी जगह भी काम शुरू किया हॉस्टल में, ये भी सेम वही काम है मेरा, बस लोकेशन चेंज हो गई हमारी। ये भी बड़ी अच्छी जगह है, मैं खुश हूँ यहाँ। तो एंड हियर आई एम गुड, हैप्पी। दैट्स ग्रेट। लोगों को काम के लिए देखो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि आप
जॉब के लिए मैं जब लोग यहाँ स्टार्ट में फर्स्ट जैसे ही आए मैं उनको पहले दिन ही जॉब पे लगवा सकता हूँ, लेकिन वो जॉब होगी इंडस्ट्रियल एरियाज में, लाइक वहाँ कपड़े बनते होंगे, शर्ट्स वगैरह बनती होंगी, बैग्स वगैरह बनते होंगे, शूज वगैरह बनते होंगे। सैलरीज भी लाइक 15 to 2000 लीरा, ये स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ की। अच्छा, एक सियाल मैं कट करूंगा, 1500 to 2000 lira per month, and if Yeah. it convert into Pakistani currency, that's mean It's mean so 1,000 lira equal to around 20,000, maximum 21,000. Now the currency is too 21,000. low. When I came here in 2018, 17 end, it was like around 29. 1 lira is equal to 29 rupees. Pakistani rupees में. जी, अभी लीरा 2021 पे चल रहा है। Fine. कुछ क्राइसिस तो around approximately 38,000 and 40,000 के बीच में जॉब होगी, and it's an odd job basically, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब नहीं लगेगी, वो पाकिस्तानी डिग्री तुर्की नहीं मानती डेफिनेटली। एग्जैक्टली Same as the world. अगर आपकी प्रोफेशनल जॉब लगे भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे बोलेंगे यू हैव टू लर्न आवर ओन लैंग्वेज सो यू कैन कम्युनिकेट। Fine. अच्छा, इसमें ये है कि अगर एक बच्चा हमारा पाकिस्तान से जिसने अभी इंटर किया या ग्रेजुएशन किया है, वो तुर्की आता है, तो वो जेब में यानी पॉकेट पे कितने पैसे रख के लेकर आएगा पाकिस्तानी? तो देखिए उनके लिए 40 to 45,000 उनके रेजिडेंस के लिए खर्चा आएगा। लाइक आप जब आएंगे विजिट वीजा पे तो आपको एक रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है जो 1 ईयर होता है। Fine. So it's a whole cost around 45,000, Yeah. including the tickets and the visa and the everything. No, it's just for residents. Fine. For visa, for ticket, and accommodation, they can stay like for $5 per night. If they stay like for 1 2 nights in a hotel, and the rest they can like arrange where if they have a friend somewhere, they can stay all together because there is people, they need people in the house, like because they cannot afford the rent of Definitely. the house. So I think I might say 55 to 60,000 पाकिस्तानी रुपीस का टिकट मिलेगा या 40,000 का, क्योंकि आजकल एक नया एयरलाइन आया पेगासस जो टर्की से कराची से अभी स्टार्ट हुआ है। लाइक टर्किश एयरलाइन है, वो टर्की का ही है पेगासस, जितना मेरा ख्याल है वो पेगासस टर्की का ही है। तो वो यहाँ से जाता है, जब मैं वहाँ से यहाँ आया था अभी नवंबर में, तो मैंने 1,000 लीरा का टिकट लिया था, तो इट्स मीन 20,000। Fine. But they don't allow you to go by one way ticket. You have to buy like round trip to go and come back because you have visit visa. Visit visa, definitely. Exactly. तो अगर मैं इसको सम अप करूं सियाल, तो अराउंड 45,000 मींस अकॉर्डिंग टू वीजा फॉर प्रोसेसिंग फीस, एंड अराउंड 50,000 यानी अगर 100 के यानी 1 लाख रुपए बंदे के पास है, हमारे किसी बंदे के पास, तो वो तुर्की 1 साल के वीजे पे आ सकता है इजीली। एग्जैक्टली वो आ सकता है अगर आप उनसे वीजे की फी हटा दो, मतलब 1,50,000 रुपए 150,000 ये यहाँ आराम से आ सकते हैं। ये एक महीने अगर जॉब भी ना करे तो ये लोग रह सकते हैं। इसमें यानी अगर 150,000 उसके पास है तो वो 1 महीने आराम से यहाँ पर आ भी सकता है और रह भी सकता है विदाउट जॉब। बिल्कुल जी बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? यानी आप जैसे बोलते हैं कि भाई अगर और जॉब कर रहा है किसी फैक्ट्री में, वो जाके आपने बताया कि वो अराउंड 1500 to 22,000 लिरा पर मंथ अर्न कर लेगा, तो उससे अराउंड 1500 लिरा से उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी हो जाती है। So 1,500 lira, if the guy earning 1,500 lira, he don't need to pay like the whole amount of the rent in the house. So there is 5 6 people living in the house. They pay, each guy pay like 100
200 lira per month. इनको 200 लीरा पे करना पड़ता है रेंट के लिए भी और खाने के लिए भी। जिन इन 200 लीरा 200 से 300 लीरा में डिपेंड ऑन द पीपल, हाउ मेनी पीपल आर दे लिविंग लिविंग इन द देयर। हाउस। या तो 200 से 300 लीरा में इनका खाना भी हो जाता है क्योंकि सब शेयरिंग में होता है। यहाँ खाने का कोई मसला नहीं है। आप सब्जी लोगे ना तो इट्स लाइक फॉर 2-3 लीरा यू कैन बाय लाइक अ केजी ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटोज एवरीथिंग। फाइन। हाँ अच्छा, अगर हाँ ठीक। बंदा हॉस्टल में रहता है, जैसे कि आप एक हॉस्टल में हैं, तो वहां पर एक सिंगल बेड ले लेता है, तो वहां उसको क्या कॉस्ट आती है? $5 $5 पर नाइट। जी हाँ, दैट कुड बी एक्सपेंसिव, यानी वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा उसको। एग्जैक्टली। बट $5 जस्ट फॉर लाइक स्टेइंग फॉर अ नाइट। आई थिंक हमारा राब्ता इनसे, लेट मी, हेलो, यू गेटिंग मी? या $5 a night, you're saying that. या That will be expensive for that will be expensive for them, for exactly. an odd job. So I'm staying here like I'm working here, so they gave me a free accommodation and food. Definitely would. Yeah. अच्छा, इसके अलावा जो है वहां पर अगर कोई प्रोफेशनल जॉब करना चाहता है बंदा, यानी ऑड जॉब पे जाके लग गया और ही इज अर्निंग अराउंड 1500 पर मंथ लिरा, और उसके बाद वो कोई प्रोफेशनल जॉब करना चाहता है, तो डज ही हैज टू पास सम एग्जाम, या कोई उनकी डिग्री लेनी पड़ेगी तुर्की की, या कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? The main thing is just you have to learn the language, and if you have the experience of the professional job, you can get it, and you can earn good money. प्रोफेशनल मींस करियर मींस कौन से करियर ऐसे हैं जो वहां पर जिसकी जॉब की डिमांड है तुर्की में इस वक्त? So लाइक if you are a डॉक्टर्स? chef, हाँ, अब आप किसी चीज में शेफ है, आपको खाना बनाना आता है, उनकी सैलरी लाइक 4 to 5 thousand लीरा है। उनको खाना, उनको रिहाइश भी मिल जाता है, अकोमोडेशन। अब फॉर डॉक्टर्स I don't have any experience about like how much are they earning here, the doctor, because I never seen any of doctors here. Like there should be people from Pakistan, might they are doctors, but I never seen in my life here. But they can earn good money, of course. Basically they are accepting the professional degrees like lawyers, Exactly. engineers, doctors, chef. If you have Yeah. professional degree, they can allow you to do job there, To professional do job. job. Yeah. फाइन। अच्छा, इसके अलावा जो है ये तो हो गया ऑड जॉब का, इसमें इनकी जो लैंग्वेज सीखनी होती है वो फ्री सिखाते हैं ये लोग या उसके चार्ज करते हैं ये पैसे? तो लैंग्वेज अब मैं अपना मिसाल देता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी लैंग्वेज का कोई एक आप जब मैं आया था तो सिर्फ मैं कम्युनिकेट कर सकता था। कम्युनिकेशन सिर्फ अपने लोगों से जो हमारे पाकिस्तान के लोग थे, क्योंकि जब मैं लोकल एरिया में रहता था तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती। दे कैन जस्ट से हाय हेलो दैट्स इट। You cannot ask them for something like can I have bottle, can I have something, so they can communicate। नहीं, इनको आप इनसे टर्किश ही बोलनी पड़ेगी आपको। तो जब मैं इन्वायरमेंट में रहता था इनके पास सारे वो लोकल एरिया था, वहाँ सब टर्किश बोलते थे। तो उनको सुन सुनकर एक इंसान खुद सीख जाता है। मैं कोई किसी कोचिंग पे नहीं गया, मैं मैं लैंग्वेज सीखने कभी नहीं गया इनके पास। एक तो मेरे पास टाइम नहीं था। आप 12 आवर जॉब करे तो फिर उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता कि आप लैंग्वेज सीखने जाएं। Exactly. So that's how I learned like when two Turkish people are communicate like to each other. So I was just listening them and watching like body language. They talk with the body language. So I was just getting this all this. That's it. So इसी तरह मैंने भी लैंग्वेज सीखी, सबने सीखी है। Here you go, like there is a when there is a way, will there is a way, right? Go with the saying.
अगर आप चाहते Yeah, हो कोई चीज सीखना तो वो आप कहीं ना कहीं से सीख ही लोगे। nothing is impossible. Exactly, it's just like excuses that I cannot do this work. I'm just so tired for this work. अगर मैं शुरू से ये सोचता कि मैं एक जगह जॉब करूंगा और मुझे 2.5 साल में कोई डे ऑफ नहीं मुझे मिलेगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैं सोच कर ही परेशान हो जाऊंगा कि मैं 2.5 साल काम करूंगा और मुझे एक भी डे ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे मुझे मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। जब मैं वहां गया तो मैं सिर्फ अपने काम से काम करता था, खुश रहता था, लोगों से बातें करता था, उनकी स्टोरियाँ सुनता था, उसके प्लान सुनता था, उनको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो इससे मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलती थी और अच्छा भी लगता था। मेरा एक और ख्वाहिश बढ़ गई, लाइक कि मैं जाऊँ, घूमूँ, उनके पास उनकी कंट्री में जाऊँ, उनसे वहाँ मिलूँ। So I have lots of friends like all over the ऑल ओवर world. द वर्ल्ड, Yep, दैट्स ग्रेट। yeah. तो अब ये ही है कि अगर प्रोफेशनल डिग्री है तो दे कैन गो फॉर प्रोफेशनल जॉब्स इन तुर्की। अगर आपके पास नॉर्मल डिग्री है तो फिर आपको और जॉब करनी पड़ेगी। एंड द अमाउंट इज पाकिस्तानी 150,000 इन 1.5 लाख रुपए। अगर आपकी जेब में है तो आप एक महीने तुर्की में इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, और एक महीने के like during 1 month you can look for like a job. You can go by yourself and ask for a job. When I came here, I was like on Saturday, Sunday, I was off there in the local area where I was working during 2 months. तो मैं इन 2 महीने में हर सैटरडे को सुबह बाहर आता था, फिर हमारा ऑफ होता था। मैं बाहर आके ये इधर टूरिस्ट एरिया में आता था, वहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह पे पूछता था किसी जॉब के हवाले से आपके पास जॉब है। लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, पर्शियन लिटिल बिट। तो उनको वो बोलते थे कि आवर मैनेजर इज नॉट हियर, वी विल लेट यू नो, ड्रॉप योर नंबर हियर। उनमें से मुझे सिर्फ 3-4 रेस्टोरेंट्स ने ही कॉल बैक किया था कि आप आ जाएं, हमारे पास जॉब है। जब मैं वहाँ गया तो मेरा एक दिल नहीं लगा था, क्योंकि I was not ready for this, to just stand in the street and calling people for the food. And डेफिनेटली। so yeah, then I called, like the day I reached here, I called to my owner where I was staying before when I came here the tour visit tourist. So he called me after 2 months to come and work with us. वैसे यानी अगर फैक्ट्री लाइन में अगर चले जाएं तो यानी अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, यानी आपको थोड़े बहुत फैक्ट्रीज का काम आता है, तो आपको और जॉब इजीली मिल जाएगी एज कम्पेयर टू Exactly, डूइंग जॉब इन रेस्टोरेंट्स। exactly. In factories, like there are lots of people who is very professional, like they are very professional for the to making, like if there is any problem in the machine they can fix it. Like after spending some time, they knows everything, how to do, how to fix these all things. तो उसके बाद ये सैलरीज भी वो लोग उनको ज़्यादा कर देते हैं। लाइक मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। द फैक्ट्रीज इज नॉट लाइक इन पाकिस्तान, लाइक oh it's the voices are everywhere. The factories here is like you have a big how can I explain it? Like it's so good. Like when you go inside of the factory, it's look like a market, like our mall. अच्छा, यानी वहाँ पर फैक्ट्रीज टोटली डिफरेंट है यानी एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान। हाँ, लाइक हर एक अपने मशीन पे बैठा होता है, सब अपना काम कर रहा होता है। कोई ये नहीं है एक ने वहाँ कुछ पहन का है, दूसरे ने वहाँ कुछ पहन दिया है। यानी सिविलाइज्ड एंड प्रॉपर्ली मैनेज्ड है चीजें। Exactly, yeah. You cannot do anything wrong, like they will fire you directly. डेफिनेटली। Yeah. ओके सियाल, अगर आप अपना कोई कांटेक्ट या आप अपना कोई ईमेल एड्रेस शेयर करना चाहें यहाँ पर मेरी ऑडियंस के साथ, कि अगर कोई आपसे तुर्की आने में राब्ता करना चाहे तो प्लीज आप करना चाहें।
जी बिल्कुल, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, मेरा ईमेल दे देता हूँ, मैं अपना फेसबुक अकाउंट दे देता हूँ। आप लोग कांटेक्ट करें। आप लोगों को यहाँ अकोमोडेशन के हवाले से कुछ पूछना हो, आपको यहाँ कैसे आना है उसके हवाले से पूछना है, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और चीपेस्ट से चीपेस्ट वे निकाल कर हम, अगर आप लोगों को यहाँ हॉस्टल या वगैरह में स्टे करना है तो मैं वो करवा सकता हूँ। फाइन, दैट विल बी वेरी ग्रेट। यानी हमारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता ना कि वहां जाके किससे मिलना है, तो एटलीस्ट दे हैड वन फ्रेंड देयर इन इस्तांबुल, लाइक सियाल खान इज देयर फॉर देम। So it's depend on people. When I was coming here, there was no one to stay here. Like, Yeah, definitely. I would say. But I know there is hostel and a hostel. I can go there and ask for the prices and how much is for the night. Definitely. Yeah. तो मैंने But I आपका can जो है वो, definitely help. that's great of you, really great of you. I have already shared your Facebook profile in the description. Meanwhile, as we end the interview, आप उसमें नीचे कमेंट अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस कमेंट कर दीजिएगा ताकि इजीली हो जाए लोगों को। That would be fine for them. Sure. फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं इंटरव्यू को। एक आखिर में एक लाइन हमारे पाकिस्तानियों के लिए, व्हाट डू यू थिंक? So I have something for like my people who lives in Pakistan. मुझे उनसे यही बोलना है, कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ अच्छा रहो, मुखलिस रहो, झूठ ना बोलो, कोई धोखाबाजी ना करो। आप लोग बिजनेस, पाकिस्तान जितना पैसा पाकिस्तान में है वो किसी कंट्री में नहीं है, as my opinion. They can make from 1 to 2 in Pakistan. मुखलिस हो जाओ, अच्छे हो जाओ। अगर एक चीज आप 100 रुपए के लेते हो ना, तो उसको खुदारा 500 रुपए की ना भेजो। 50 रुपए 100 रुपए कमाओ, रोज खाओ, कम खाओ, सुकून से खाओ। तो सुकून से खाओ। बाकी बेस्ट ऑफ लक। हम यहाँ आए तो इसका ये मतलब कि हम अपनी कंट्री छोड़कर आए तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। इट्स जस्ट बिकॉज लाइक I want some peace like in my life. I want to be happy, like do what I do. But like in Pakistan, if you do anything you want, people will like, they will be like judging like why you guys are doing this, or like they don't look after themselves, but they look for yourself. What you doing? Definitely. Yeah. बस ये कुछ कहना था मुझे। नहीं, that would be very good. बहुत अच्छा लगा सियाल आपसे बात करके। It was really wonderful talking to you. We end up this interview. Thank you. Allah Hafiz. It was pleasure to meet you, sir. Thank you. Allah Hafiz.